Welcome back now to what happened in the Supreme Court today. Renaming cities and historical sites has become a new trend under the BJP government. Just last week, there were two cities in Maharashtra that were renamed. Aurangabad was changed to Chhatrapati Sambhajinagar and Osmanabad was changed to Dharashiv. It had been a demand of right-wing groups for the longest time, and this weekend that demand was finally fulfilled. But the Supreme Court has taken a different take on the issue. The court does not believe renaming is part of righting historical wrongs. They believe it's an effort to keep the country on the boil. First, let me give you some context here. BJP leader and advocate Ashwani Upadhyay, and he's joining us in just a bit, had filed a petition seeking the creation of a renaming commission of India. This commission would research and document cities and sites named after so-called foreign invaders. In simple words, Muslim rulers and Christian rulers too. Not only did the court dismiss this petition, they had some tough words for the petitioner. Justice K.M. Joseph asked if the petition was aimed at keeping the country on the boil and running down a particular section of society. He also said that Hinduism is a way of life and has assimilated different people and communities living in India. He says bigotry is not part of Hinduism. In fact, Justice Joseph has asked the petitioner to not bring back the British divide and rule policy. Justice B.V. Nagaratna also had some tough words for the petitioner. She said that invasions are a historical fact and cannot be wished away. She also asked the petitioner to keep the country in mind and not one religion. By this time, the petitioner, Ashwani Upadhyay, had sensed his demand would be shot down, so he tried to withdraw the petition, but the judges did not let him do that. Instead, they junked the petition with some very scathing observations. The bench mentioned the Constitution's preamble in their observations. It also said that a country's history cannot haunt its present and future. The judges ended their observations by asserting the importance of unity and fraternity. Put together, it's a damning take on the recent renaming trend in the country. Some major cities like Allahabad have already been renamed. Efforts are underway to do the same with cities like Hyderabad. The questioning, does renaming further communal and social divisions, or do they bring closure to the residents living there? In this case, the top court clearly thought the former is true. Let me go straight across to Ashwani Upadhyay, who's an advocate. He was the one who had taken that plea for a renaming commission in India to the Supreme Court. Ashwani Upadhyay, thank you very much for your time here on Mirror Now. Can I please ask you, ये क्या renaming का क्या चक्कर हो गया? Why is this बीमारी spreading across India? Why did you want a renaming commission in India? देखिए श्रेया जी, भारत इकलौता देश है दुनिया में जहां पे हत्यारों के नाम पे, बलात्कारियों के नाम पे, वहशी दरिंदों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां हैं, रेलवे स्टेशन बने हुए हैं। जिस बख्तियार ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया उसके नाम पे बख्तियारपुर चल रहा है। ऐसे लगता है कि भारत के हिंदू थर्ड क्लास सिटीजन हो चुके हैं। आखिर हिंदुओं को राइट टू डिग्निटी है कि नहीं, राइट टू रिलीजन है कि नहीं, राइट टू आइडेंटिटी है कि नहीं, राइट टू कल्चर है कि नहीं? ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन लगता है ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुओं से छीन लिए गए। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा था, उसका वर्णन महाभारत में है। उसमें एक गांव था तिलप्रस्थ। तिलप्रस्थ को फरीद ने जाके लूटा, तोड़ा और तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना दिया। अगर फरीदाबाद वापस तिलप्रस्थ नहीं होगा तो हमारा राइट टू रिलीजन, राइट टू कल्चर, राइट टू आइडेंटिटी, राइट टू डिग्निटी कहां गई? इसी तरीके से एक बेगू नाम का लुटेरा था, उसने अजात शत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया। शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया। दरभंग खान ने द्वारबंग को दरभंगा बना दिया। हाजी शमसुद्दीन ने हरिहरपुर को हाजीपुर बना दिया। जमाल ने सिंहजानी को जमालपुर बना दिया। मुजफ्फर ने विदेहपुर, याद रखिए सीता जी के पिताजी का नाम था विदेह, राजा जनक को हम लोग विदेह भी कहते हैं। राजा जनक ने शहर बसाया था, उसको विदेहपुर कहते थे। वहां मुजफ्फर गया, उसने बिहार में मुजफ्फरपुर बना दिया। अहमद शाह अब्दाली ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया। बुरहान ने भ्रगनापुर को बुरहानपुर बना दिया। होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया। अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया। तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद, बस मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया। उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया। भाग्यनगर आपका हैदराबाद हो गया। मोकलहार को फरीद ने फरीदकोट बना दिया। अब जरा सोचिए, महाभारत में एक स्थान है विराट,
जहां पांडवों ने अपना शरण लिया था जब उनका अज्ञातवास चल रहा था। उस विराट को होशियार खान ने होशियारपुर बना हाँ। दिया, करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, मीर जाफर ने अलीपुर बना आप दिया। सुनिए, एक मिनट में, अरे अश्विनी कीर्तेश्वरी जी हमारा सवाल तो सुन शक्तिपीठ है। लीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने तो, अरे सुनिए तो अश्विनी जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? एक तो आपकी पिटीशन एकदम खारिज कर दी है, आप उसे विड्रॉ करना चाह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसको तो हम खारिज करेंगे सबसे पहले। दूसरा, तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इंडिया कैन नॉट बी अ प्रिजनर टू इट्स पास्ट। इंडिया कैन नॉट बी अ प्रिजनर टू इट्स पास्ट। क्या हम लोग ये डिनाई कर सकते हैं अपनी हिस्ट्री से कि हमारे यहाँ इन्वेडर्स आए, मुस्लिम इन्वेडर्स आए, ब्रिटिश आए? हम उस हिस्ट्री को निकाल तो नहीं सकते ना। वी आर ए यंग इमर्जिंग नेशन, ओन योर पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। इतना कॉम्प्लेक्स की क्या जरूरत है? ठीक कह रही ये मतलब हिंदू खतरे में है कैसे? श्रेया जी, हमारे 51 शक्तिपीठ हैं। देवी जी का जहां मुकुट गिरा था उसको कीर्तेश्वरी कहते हैं। वहां एक मुर्शीद खान नाम का लुटेरा 1470 में गया, उसने कीर्तेश्वरी मंदिर को गिराया, सोना लूटा और कीर्तेश्वरी को उसने मुर्शिदाबाद बना दिया। वो मुर्शिदाबाद आज भी चल रहा है। इसी तरीके से द्रौपदी जहां पैदा हुई थी उसको कहते थे पंचाल। 1470 का सरदर्द सुप्रीम कोर्ट अब क्यों ले? Why should we be a prisoner of our past? ये सुप्रीम कोर्ट ने आपसे सवाल पूछा है। उन्होंने इनफैक्ट अश्विनी जी ये भी बात बोली है that do you want to keep the country on boil? ये तो ब्रिटिशर्स के डिवाइड एंड रूल वाला हिसाब है। अगर आप कमीशन लिया है कि आप दो कम्युनिटीज में इस तरह का कड़वापन और वैर घोल देंगे that the country will be on boil। बस मुझे 2 मिनट अनइंटरप्ट दीजिए, मैं सब जवाब दे रहा हूं। जहां द्रौपदी पैदा हुई थी, हमारे महाभारत में वर्णन है कि उस स्थान को पंचाल कहते हैं। एक फरूख खान नाम का लुटेरा गया, उसने पंचाल को फरुखाबाद बना दिया। अब हमारे हिस्ट्री में लिखा हुआ है, हमारे वेद पुराण गीता रामायण में लिखा हुआ है कि यह स्थान तो पंचाल है। अब मैं पंचाल ढूंढ रहा हूं तो मुझे कहीं भारत हिंदुस्तान में पंचाल मिल ही नहीं रहा, तो हमारा राइट टू रिलीजन कहां चला गया? इसी तरीके से गजप्रस्थ का वर्णन महाभारत में नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उस पे बात करिए ना अश्विनी जी। आप मुझे इतने उदाहरण मत दीजिए, मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो आपकी पिटीशन डिसमिस की, और दूसरा बोला कि हमारा समय मत खराब कीजिए, और तीसरा बोला दैट इंडिया कैन नॉट बी अ प्रिजनर टू इट्स पास्ट। श्रेया जी, रीनेमिंग का मुद्दा आज खत्म नहीं हुआ है, आज से शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बिल्कुल गलत है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं। ना सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने हमें अपने जजमेंट साइट करने के दिया। मैं रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपना रिटर्न सबमिशन फाइल करने, तो वो भी नहीं किया। मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट किस जल्दी में था, वो क्यों इसको नहीं सुनना चाहते। शायद इसलिए भी नहीं सुनना चाहते कि अगर मैं इसको और सुनते, मैं इस पे रिटर्न सबमिशन देता, ये बात आगे बढ़ती। लेकिन मैं आपके चैनल पे आज गारंटी के साथ कहता हूँ, रीनेमिंग का मुद्दा आज से शुरू हो चुका है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं, जनता की अदालत में चलेगा। मैं उन सारे शहरों में जाऊंगा जिन शहरों का नाम बदला गया है, मैं उन सारे शहरों में जाके वहां पे बताऊंगा कि किस तरीके से पंचाल को फरुखाबाद बना दिया, भिटौरा को फतेहपुर बना दिया, गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया, जमशेदपुर को जौनपुर बना दिया। अश्विनी जी, जस्टिस जोसेफ हैं, आज आपकी पिटीशन सुन रहे थे और उन्होंने एक चीज बोली है। अश्विनी जी, जस्टिस जोसेफ जो आपकी पिटीशन सुन रहे थे, आज उन्होंने एक अच्छी बात बोली कि हिंदुइज्म डजंट हैव एनी प्लेस फॉर बिगेट्री इन इट, और जो आप बात कर रहे हैं वो बिगेट्री की बात कर रहे हैं। खैर, ये बहस लंबी चलेगी और आप कह रहे हैं आपके लिए मुद्दा भी खत्म नहीं हो रहा है। सो लेट्स सी वेयर द स्टोरी गोस। अश्विनी जी नमस्कार, हो गया टाइम। थैंक यू। अच्छा, आज से शुरू हुआ, चलिए फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच अश्विनी उपाध्याय फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस ब्रॉडकास्ट।